انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ میں
محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دعوت کا محترم جناب محمد فراد طاہری صاحب کو وہاں کا کارسراس شام میں نشریف کا نظران بشمل محترم جناب محمد فراد طاہری صاحب. محبت و شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس دن مثال نہ کوئی اتائی کوئی ذات شبیر حسب و نسب و عرفالا اسامدیا جگدا پیر سیرت
اللہ ماشاء اللہ یہ تو محترم جناب محمد فراد طاہری صاحب جو آقا علیہ السلام شان میں گلائے نظر پیش فرما رہے تھے. محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام دوست بآواز بلند ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ. محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ آج کی یہ ماہور محفل 11ویں شریف کے حوالے سے رکھی گئی ہے تو آج اس دعوت دے گا محترم جناب محمد ریحان طاہری صاحب کو وائر نزول غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش کرنا. محترم جناب محمد ریحان طاہری صاحب. واہ کیا غوث ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. میرا ولیوں کے امام 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 دے دو پنجتن کے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میری میرا. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میری میرا. میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار کر دو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. دل کی کلی میری آج کھلی ہے دل کی المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث المدد میری یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام. سب نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا. سب نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. ڈالو نظر کرم ایک بار ڈالو نظر کرم ایک بار ڈالو نظر کرم ایک بار اپنے منگتوں پر ایک بار. ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
उस अल्लाह के कामिल वली हमारे भी मुर्शिद शान मोहम्मद कबद होगी, जिन्होंने हमें गौस पाक से मोहब्बत सिखाई। बल्कि गौस पाक ही नहीं, नक्शबंदी, कादरी, सोहरबंदी, चिश्ती, जितने भी सिलसिले के बुजुर्गान दीन हैं और या अल्लाह हैं, सबसे मोहब्बत और उनके अदब का दर्स हमारे भी मुर्शिद सजद साईं देते हैं। तो इसी वजह से आप दोस्त भी कहते हैं कि अगर सजद साईं की महफिल हो जाए, मनकबत हो जाए, क्या बात है, हो जानी चाहिए मनकबत। जज़ाकल्लाह। तो आज इस दावत देगा मोहतरम जनाब मोहम्मद फराद ताहिरी साहब को, वहाँ बुजुर्ग इब्लाग और महबूब सजद साईं दावत बरकत का शान में मनकबत शरीफ का दर्जा पेश करें। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार। इश्क दा लंगर चलदा इत्थे, इश्क दा कारोबार। सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे सोना अल्लाह दिल ते लिखिया सब तो सोहने पीने। सोना अल्लाह दिल ते लिखिया सब तो सोहने पीने। सब दी दस्तगीरी की सज्जन दस्तगीरे, सब दी दस्तगीरी की सज्जन दस्तगीरे। अखा वाला पीर है सादा, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार। आलिम फाजिल जाहिद ये दे दर्द मेरे लाए, आलिम फाजिल जाहिद ये दे दर्द मेरे लाए। वलियां दी तादाद न पूछो, देखो कितने आए। वलियां दी तादाद न पूछो, देखो कितने आए। जाहिर दा सरताज सजन साईं, वलियां दा सरदार। सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार। अपनी सत्ता पुश्ता तक ले ऐसा पीर नहीं होना, अपनी सत्ता पुश्ता तक ले ऐसा पीर नहीं होना। हर एक दी खबरां रखदा जान धजा मेर सोना, हर एक दी खबरां रखदा जान धजा मेर सोना। दिल विच सब दा दर्द रखेंदा उम्मत दा गमखार। सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार, सज्जन दे दरबार आओ, सज्जन दे दरबार। करम कमानी खैर तू पानी, वलियां दे सरदारा। करम कमानी खैर तू पानी, वलियां दे सरदारा। तेरे बाजो कोई नहीं मेरा, एको तू ही सहारा। तेरे बाजो
سبحان اللہ ماشاءاللہ محترم جناب محمد فرحات طاہری صاحب جو حضور قبلہ اور محبوب سجن سائیں دامت برکات علی شان میں منقبت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو 26 نومبر کو ڈاکٹر عبدالعزیز مغل صاحب کے گھر پر محفل ہوگی 11ویں شریف کی. نزد وقت حافظ تمام دوستوں کو دعوت ہے بعد نماز عشاء. اور انشاءاللہ تعالیٰ 27 نومبر بروز ہفتہ مسجد کے باہر سے بینک کا دوستوں نے اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ سالانہ اس مبارک سونا سائن نور اللہ مرکز ہوگا تو اس میں جانے کے لیے 1000 روپے کرایہ رکھا گیا ہے. جو بھی دوست چلنے کے خواہش مند ہیں وہ ریحان بھائی کے پاس جو ہے 500 روپے کم سے کم ایڈوانس اپنے جمع کرا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 27 نومبر کو عشاء کی نماز کے بعد یہاں حنفیہ مسجد کے باہر سے بینک جائے گی. 1000 روپے کرایہ ہے. جو بھی دوست چلنا چاہیں انشاءاللہ وہ اپنی سیٹ بک کروا لیں. اب انشاءاللہ حضور قبلہ محبوب سجن سائیں دامت برکات علی پیارے خلیفہ جماعت اسلام کل انشاءاللہ عشاء کے بعد اقبال بھائی کوچ والے کے گھر پہ بھی انشاءاللہ محفل ہے تو اس محفل میں بھی دوست شرکت فرمائیں. کل انشاءاللہ عشاء کے بعد اقبال بھائی کوچ والے کے گھر پہ انشاءاللہ محفل ہوگی. حضور قبلہ محبوب سجن سائیں دامت برکات علی پیارے خلیفہ جماعت اسلام مسلمین روحانی طور پر جماعت برانچ جا کر اس سرپرست حضرت علامہ مولانا خلیفہ محمد حسن بخشی طاہری عزیز العالی خطاب سے آپ کے اور ہمارے دل کو میں نے کہا کہ
عبد القادر جیلانی محمود سبحانی جو بھی ہو جائے قیام امت محمدیہ میں اللہ نے فرمایا میں ان سب کے ساتھ ہوں۔ جب رب ان کے ساتھ ہے تو اگر ہم ان کا ذکر کریں گے ان کے پاس جانے تو کس طرح جائے جانے کے جو طریقے ہوتے ہیں یا تو ہم جسمانی طور پہ جانے کے وہاں پہنچ جائیں اصول ہے یا تو ہم آپ سننے کی کوشش کرو اور سمجھو یا تو ہم ان لوگوں کے پاس ان پیاروں کے پاس جسمانی طور پہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھے دوسرا طریقہ یہ ہوگا اگر جسمانی طور پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم روحانی طور پہ پہنچ جائیں روحانی طور پہ ہم پہنچیں گے اگر روحانی طور پر ان کے پاس نہیں جو محفلیں ہو رہی ہیں آج جو محفل ہوئی عبد القادر جیلانی محمود سبحانی دستگیر بادشاہ کے نام پہ ہم تو یہاں پاکستان بیٹھے تھے مسجد اور دارو حنفی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ذہنی طور پہ روحانی طور پہ حقیقت میں ہم یہاں نہیں مل بردار یہ تصور ہونا چاہیے آج آپ بغداد شریف میں مزار میں ہیں اللہ کی بڑی لیلا ہے مزار میں ہیں بغداد اگر دیکھا جائے اگر سمجھا جائے تو ان کا فیض جو پوری کائنات پر ہے
فرشتے باغوں میں دوڑے نکل کر ڈھونڈے اور ڈھونڈے اس طرح کی ان کو نکال دے اللہ کے ولیوں کو نکال کے اللہ کے نبی کو نکال کے پھر ڈھونڈتا پھرے کر خدا نہیں ملے گا نہیں ملے گا ملتا تب ہے جب ہم اپنے دماغوں کے اندر اپنے روحوں کے اندر اپنے اعمال کے اندر اپنی زندگی پوری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اولیاء کو ملا کر جو فیض وہاں سے ملے گا مدد وہاں سے ملتی ہے اسی طرح حضرت میں اللہ نے بھی بتایا فرمایا لوگوں سن لو ان اللہ المتقین اللہ جو ہے وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے لگا ہوا ہے جب تمہیں گناہ ہو تو پاتا تصورات میں خیالات میں وہاں چلے جاؤ گے جب وہاں جاؤ گے اپنی فرمائش میں تمہیں لے جاؤں گا راستہ وہی بتایا اور متقی جو ہو ان کا مقام کیا ہے فرمائے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم قرآن سنو اپنے فرمائے انما اکرمکم اے لوگوں تم میں سے سب سے اچھے کون ہے سنو اکرمکم تم میں سے بڑا مکرم بڑا محترم بڑا معزز بڑا عزت والا کون ہے ہم تو اپنی طور پہ کسی اپنی زندگی کر لیتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو جس کے پاس کار ہو جس کے پاس بنگلہ ہو جس کے پاس قسمت ہو جس کے پاس طاقت ہو جس کے پاس قوت ہو جس کے پاس حکمت ہو جس کے پاس نسخے ہو وہ بڑا اچھا ہے اعلیٰ ہے ایک رب نے فرمایا نہیں یہ تمہارا کیا ہے یہ تمہارا کیا ہے کہ ہماری عزت ہمارا اس میں ہے کہ دولت زیادہ ہو ہماری عزت اس میں ہے کہ نسبت زیادہ ہو صرف سہارا ہی ہو قوت ہو یہ ہو یا دبدبا ہو اللہ نے فرمایا اس میں نہیں ہے میرے بالا کے اکرم کون ہے جس کو رب اکرم کرنا ہے جس کو اللہ عزت دے دے اس کو کون دے سکتا ہے جن کے پاس ساری عزت اللہ نے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے لوگوں تم میں سے تم انسان میں سے یہاں پر فرمایا کوئی مخلوق میں سے جبرائیل میں سے میکائیل میں سے اسرائیل میں سے اسرافیل میں سے زمین میں سے آسمان میں سے سب کائنات میں سے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ معزز کون ہے مکرم کون ہے اس کا نام فرمایا عند اللہ اللہ کے پاس اتقاکم سمجھنے کی کوشش کرو ہم کتنا دنیا میں سمجھتے ہیں لین دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بابا یہ لے کے کیا پھر اور نہیں سمجھتے کیا قرآن ہم اور نہیں سمجھتے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی ضرورت ہے ہمارے معنی میں لوگوں کو امیروں کو غریبوں کو ضرورت ہے امیروں غریبوں سب کو ضرورت ہے قرآن کو سمجھے اللہ نے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوگوں تم میں سے جو زیادہ متقی پرہیزگار جو ولی کامل ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کے پاس اللہ کے پاس کی بہت بڑی عزت ہے اس کی بہت بڑی عزت ہے اللہ کے پیارے کی بہت بڑی عزت ہے مالک کائنات خود اس کا بتاتا العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ عزت اس کے پاس ہے استعمال میں اس دولت میں اس کاروبار میں دھندے میں عزت ہے ہمارے کپڑوں میں عزت ہے فلاں چیز میں لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ ساری چیزیں عارضی ہیں کپڑا عارضی ہے دھندا عارضی ہے دولت عارضی ہے اپنی قوم عارضی ہے عزت عارضی ہے لیکن فرمایا ابدی کیا چیز ہے فرمایا العزت للہ ہے عزت اگر ہے تو اللہ کی عزت ہے جو حی ہے جو قیوم ہے جو ابدی ہے جو ازلی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے جس کو عزت دے دے اگر تن کے کو عزت دے وہ بھی اعلیٰ ہو جائے یہ ہے
अपने पास भी रखी है, लेकिन मैंने यही इज्जत वाले रसूल ही, मैंने ये इज्जत अपने रसूल को भी देके रखी है, जिसके ऊपर निगाह फरमा दे, जिसके लिए दुआ करते, जिसके ऊपर इशारा करते, तो वो भी बहुत होता है। और फरमा मेरे नबी जो है उसको मैंने इतनी इज्जत दी है, इतना कमाल दिया है, इतनी कुव्वत दी है, अगर किसी गुनाहगार पर इशारा कर दे वो वली कामिल बन जाए। एक हबशी की तरफ इशारा कर दे वो हसीन और जमील वालों से फजला होता है। एक हमारे मदद करते जिसके ऊपर निगाह कर दे उसको कमाल दे देता है। अल्लाह ने फरमाया ये कमाल मेरे पास है, मैं किसको दे दूं? वो कमाल इज्जत मैंने रसूलुल्लाह को दी है। वल रसूलिही वल मुमिनीन, तो लोगों समझ लो इज्जत अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और रसूलुल्लाह के गुलामों के पास भी इज्जत है। और ये क्या रसूलुल्लाह के गुलाम है, कोई ऐसा वली नहीं है जो रसूलुल्लाह से जुड़ा है। हर वली रसूलुल्लाह की तारीफ करे, उसके तरफ बुला के ले जाता है, वही सिखाता, उसकी सोहबत से, उसकी मोहब्बत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करता है। ये वली की इच्छा में होता है। फरमाया वली वो होता है इज़ा रूहु ज़ुक्रिल्लाह, ये वली जब तुम्हारे सामने आता है, जब उसको देख लो मेरे निगाह पर तुमसे बेसाता निकल जाए अल्लाह। कहते वली में खुदा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह उनके साथ रहते, अल्लाह उनके साथ रहते। आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो खुदा का रास्ता शादी है, पूरे अफाक में जाओगे, तुम्हें क्या नजर आएगा? बदबू नजर आएगी, क्या खुशबू नजर आएगी? जो जैसी आदत में होगा वैसी आदत में नजर आएगा, जिस अफाक में होगा वही अफाक में नजर आता है। रब ने कहा याद रखो कि जिसके पास तुम जाओगे तुम्हें वही नजर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बंदे जो होते हैं, जिनके साथ मैं होता हूँ, अगर उनका जिक्र किया जाता है मैं नजर आना शुरू होता। और अल्लाह ने औलिया के नाम को बड़ी कुव्वत दी है, बड़ा कमाल दिया है, बड़ी कुव्वत दी है, बड़ा कमाल दिया है। इतना कमाल दिया, इतना कमाल दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि जिब्राइल से ज्यादा कुव्वत दी है। देखिए दावा नहीं करते, लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह कुरान क्या फरमाता है कि मैंने इंसान को पूरी कायनात से अफजल बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। रब ने फरमाया मैंने इंसान को अहसन तक़वीम में किया है, उसकी बनावट में किया है, उसकी कुव्वत में अहसन बनाया है, सब ताकतवर बनाया है। अगर जिब्राइल है ठीक है, मैं उसके पास ताकत है, लेकिन जो वली है, जो खुदा का प्यारा बंदा है, नबी है, लेकिन नबी के गुलाम को बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। अब सच में क्या है मखलूक की? अब अनासर थोड़ी समझ लो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो सब अब अनासर माना चार अनसर से इंसान बनता है। थोड़ा सोचो, चार चीजें जिससे इंसान बनता है। एक जल्दी से देखो, वैसे को पता लगे हमारे चार से बेड़ा है सरे खाक की, खाक समझ लो, खाक बनी, खाक करना इंसान पैदा होता है खाक की, अगर उसके पास आबी पास माना पानी, इंसान पानी से बनता है, इंसान मिट्टी भी उसके साथ है, पानी भी साथ आगे फरमाया आतिशी नाई गर्मी, गर्मी भी इंसान के पास है, आगे फरमाया कि उसके साथ चार तरफ ये मिट्टी है। समझ एक मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरी गर्मी जो कि हवा।
हवा जब इंसान मुत्तकी परहेजगार हो जाता है, काशिफ खुदा होता है, रसूलुल्लाह का पक्का गुलाम हो जाता है, फरमाता है चारों अनसरों के ऊपर इसको हुक्मरानी दे देता हूँ। हुक्मरानी मट्टी में भी इसका कर्म करता है, आग में भी इसका कर्म करता है, पानी में भी इसका कर्म करता है, तो हवा में भी इसका कर्म करता है। आप सहारा किराम को देंगे और क्या किराम को देंगे, सुभान अल्लाह। उन्होंने इन चार लोगों से हुक्मरानी कर देता है कि अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वली कामिल है या नहीं है, वली का सरदार है या नहीं है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी उस्मानी का भी वली है, उनका भी विषय है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकबर फारूक ने को सब सहाबा जानते हैं, सब वलियों के सरदार हैं, वलियों के वो सरदार हैं। अकबर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में को आप देखें कि उसका ज़माना हुआ, एक लोग नहावन से आए, उन्होंने आके बताया हज़रत एक लावा उगला है। क्या उगला है? लावा। लावा जिसको बोलते हैं जो पहाड़ में आग लगती थी, आज तक कोई ऐसा भाई में बना जो रोक सकते ये भी कहीं से जी भाई उस वक्त तक जब ये आग चलती है तो ये पहाड़ पानी की तरह बहता है गर्म होके। लावा हज़रत लावा उगला है, बह रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दिला बर्बाद तबाह करता है। अगर आप बता दें कि आपने आज की हुक्मरानी है, आपने फरमाया ऐसा करो, उस एक चीज को बताया, ये मेरा कपड़ा ले लो। क्या ले लो? चादर। ये चादर सुन्नत में फरमाया ये मेरी चादर ले लो। कोई वजीफा पढ़ना नहीं है, कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी है, जहां लावा निकला है जाओ जा करके उसके ऊपर फेंक दो। लावा जो जबल को जला, पहाड़ को रेजा रेजा करके बहा रहा है, पानी की तरह बहा रहा है। देखो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का प्यारा कलाम सहाबी औलिया सहाबा खलीफतुल मोमिनीन वलियुल का सरदार नबी नहीं है, नबी नहीं है, वलियों का सरदार मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। और लेने वाले ने पूछा भी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, इसने पूछा भी नहीं कि आप ये कपड़ा दे रहे हो तो कॉटन का बना हुआ है, इसका तो काम है जलना, आप उसको जलाते हैं, लेकिन आप ये दे रहे हो ना तो बनावट है। मालूम हुआ सहाबा को जो पानी से जो आया था उसको भी ईमान था कि ये जो हुक्म दे रहे हैं उनका प्यारा कुरान है, बजुल का सरदार है, वाकई अगर धक्का ले जाऊंगा तो अमल करेगा। मना ऐसा है इस्लाम रखना और या किराम दीन के जो जिसम के साथ जो चीज लग गई टच हो गई उसके अंदर भी एक कमाल हो जाता है। ये किसने हमें सिखाया? इस सहाबा ने सिखाया कि अकबर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर जिसको टच हो गई है उसको लेके जा रहा है, घोड़े पे सवार भागा जाता है। मुनाफिकीन देख रहे हैं, ऐसे वैसे देख रहे हैं, ये चचा होता है, ये मस्त हो गया है, ये कॉटन का कपड़ा है, उसने कहा भागा जा रहा है, लेकिन उसको बड़ा फर्क मिल गया है, इसको कोई बड़ी ताकत मिल गई, केमिकल मिल गई, जा रहा है, लेकिन वो मस्त है, वली उनका मस्त है, खुदा के प्यारे का मस्त है, कहा खलीफतुल मोमिनीन का हुक्म है, ले जा रहा हूं, उस कपड़े को लिया, भागा भागा लावा के पास जाता है, जैसे करीब जाता है लावा पीछे हटता है, पीछे हटता है, पीछे हटता है, फरमाया जहां से निकला वहां तक चला गया और कपड़ा फेंक दिया। जब कपड़ा फेंका तो लावा बंद हो गया। ये क्या है? ये कौन सी साइंस है? कौन सी कुव्वत है? अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी के साथ हूं, उमर फारूक के अल्लाह ने उसके साथ है, लेकिन अल्लाह ने कपड़े के साथ भी हो। अल्लाह तो इस कपड़े के साथ हो गया
या सारिया अल-जबल, क्या बोला? उस टाइम पे वायरस नहीं करो, ये मुबारक वायरस नहीं करना, जो आपका आसान हो। फरमाया या सारिया अल-जबल, आप खुतबा दे रहे हैं, खुतबा के दरमियान में ये अल्फाज बोल के खुतबा आगे शुरू कर दे। आगे खुतबा, पीछे खुतबा, अमीर लोगों की खुतबा कर रहे हैं, इतनी पब्लिक बैठी थी और आप फरमाया या सारिया अल-जबल, या बात निकाली निकालने के बाद आप फिर मशहूर करते किसी ने पूछा किसको जुड़ा अदब भी कोई चीज होती है। आजकल अदब क्या होता है, हम बड़े बेहतर हो गए। परसों से कोई इमाम है, वो मौजूद है, उसको ये तो ऐसे हमारा बात है, हमारा बात है। हालांकि इमाम आगे जो होता है जिसको अफसर समझा जाए उसको आगे क्या है। अगर किसी को अफसर नहीं समझ रहे हो तो उसको आगे नहीं करो, उसके पीछे तुम्हारी दिमाग नहीं होगी। मुसल्लमा मसला है, कोई फतवा दी हुई इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, आगे जिसको करो जिसको अफसर समझते हो। अगर इस बात में चलो तो सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने सहाबा अपने से अफसर से जिक्र कर को समझा फरमाया जाओ जाकर के पूरा हज करवा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम 10 हिजरी में मदीने पाक में हज फर्ज हुआ। पहले हज पे हुजूर की ज़ात ग्राम में तशरीफ नहीं ले गए, बहुत से पता है तब मालूम पहले हज में तशरीफ मदीना से नहीं ले गए, लेकिन आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक तू जा जाकर के सब सहाबा को ले जाओ तो हज करवा के वापस। इमाम उसको बनाया जाता है जो दूसरे अफसर हो, ये उसूल। तो मैं बात मानना चाहूँ तो हज़रत सैयदना उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, ऐन खुतबे के फरमाया या जबल, वो साया जबल के पीछे थे, इशारा ऐन लोगों को देखिएगा ये क्या क्या चुप रहे, सारे वापस आए और पूछा गया साया क्या मसला है। इस टाइम पे फलां वक्त था, जुमे का दिन था, तो तुम्हारे बाबू किताब दे रहे थे, किताब देते थे आपने फरमाया साया जो मसला क्या है, आपने कसम खा के फरमाया साया ने फरमाया कि फलां जगह पे जब बहुत हजारों की उतारा से मुकाबला हो रहा था, काफिर लड़ रहा था, लड़के सामने लड़ रहा था, लेकिन काफिर में ये चाल चल रही कि आगे के बराबर चलते को पीछे भेज दिया था कि वो आगे देखते चलते रहा था, लेकिन वो पीछे आ रहे थे, काफिर बीच में कुचलते। लेकिन ऐन टाइम पे फलां वक्त पे जुमे का टाइम था, ये वक्त था, उसमें पे हुए कानों के अंदर आज उमर फारूक की आवाज आई आने वाली ये आवाज किसकी है? आवाज आती है हवा में, उसूल आवाज हवा के अंदर आता है, तो हवा मजबूर हो गई अगर उमर फारूक की इस आवाज को ले जाने के लिए साया तक पहुंचाए, कान में पहुंचाने, साया पीछे देख ले हमें आ रहा है। साया ने फरमाया मैं उसी के अंदर हुक्म दिया आगे आगे जा, आगे पीछे जा, पीछे देखा करता आ रहा है, उससे हमला किया और कामयाबी हुई। अगर उमर फारूक की आवाज ना आती तो मैं कामयाब नहीं होता। ये क्या चीज है? और एक क्या होता है बहुत सुलभ करते थे। आप वलियों को मानते हैं तो कादर जीना और औलिया को मानते हैं, हर जगह पे वो जाना वो तो सोए हुए करते हैं, उनको क्या कहना, उनको क्या कहना। दोस्तों हमने औलिया किराम की बात को समझाई, लेकिन वली किसको कहते हैं? दिमाग होता है, 5 बजे दिमाग का बन जाए ताकत बन सिर्फ जाना पड़ता है, सिर्फ माना पड़ता था, ये वली की निशानी और है
हैं, रूही ताकत होती है, श्री होती है, कफी होती है, कलम उसके अंदर बहुत बड़ा जाकिर होता है, अल्लाह का जिक्र हमेशा मस्त होता है, उठता है, घूमता है, फिरता है, चलता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होता। अल्लाह का वली हमेशा अल्लाह के जिक्र में मस्त होता है, उसको दुनिया की चक्कर नहीं होती। हम लोग दुनिया के फंसे हुए हैं, दुनिया हमारे फंसी हुई। अल्लाह का वली ऐसे होता है, वली का ताकत कलमी भी होती है, फरमान रूही भी ताकत होती है। ये 7 लतीफे होते हैं और फरमान जब ये ज्यादा कर लेता हर लतीफे के अंदर एक लतीफे में 70 शक्लें बन जाती हैं। कितनी शक्लें? कलमी ताकत हो जाती है, 70 शक्लें, रूही श्री कफी कम से कम पहला दर्जा वली का जो होता है 7 को 70 से मल्टीप्लाई किया करते हैं, करो कितने हजार बन जाते हैं। फरमाया जब ये वली एक जगह पे होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं हर जगह पे घूमते हैं, वो काम करते हैं, लताज के काम करते हैं, वली की लताज काम करते हैं। अल्लाह के वली की लताज काम करने का क्या कि 7 लतीफे होते हैं, फिर हर एक लतीफे के साथ शक्ल हो जाती है, फिर वो होता है एक जगह पे लतीफा होगा, शक्ल लेके घूमता फिरता है, बदलने करता रहता है, कौन-सा भी रहता है, अल्लाह के वली की कुदरत कहाँ होता है? हम बता रहे हैं, समझते हैं शायद ईमान पड़ता है, ईमान अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हमने ऐसे करके बताया है बातें नहीं बोले। उस्मान की पिताई साहब को क्या कहते हैं? वली समझ कितनी डिमांड हो रही, कितनी मांग हो रही है, तो वो करेंगे आस्था से उनका ख्याल जाहिर में मालूम पड़ते थे, लेकिन वो रूही क्या इसकी कफी इसके तरह हुआ करते थे, चलते थे, घूमते थे, अगर वो ये जो तारा बन जाता वो तो खुद बताता अल्लाह अल्लाह करता। अगर तस्वीर मन दिल तबू जितने हमारे घर तस्वीर बनी पड़ी है, तस्वीर लौटा थे, तस्वीर देखते हो तो पता नहीं क्या चीज फरमाता है तस्वीर मन दिल तबू जितने तदूने कलबो वहद तसल वजन वहद ला शरीक लहू इगोरा कुल कोए भले सुताए सुहन नाहे जदातुन असा ज्यादा नहीं करते, हम जाते हुए भी में लेकिन अल्लाह के वली क्या है, बड़े जो होते हैं उनका सारा जिस्म जो होता है अल्लाह का जिक्र फरमाया, यहाँ तक के बाल लाल अल्लाह का जिक्र दिल में जिक्र करता है, रूह में करता है, कल में करता है, शरीर को सब करते हैं। अल्लाह फरमाया उसके जिस्म के बाल बाल अल्लाह का नाम करता है। अल्लाह के वली कम नहीं, मजाक नहीं बुलाया, बहुत बड़ा कमाल है। इसलिए हमें तुम्हें चाहिए कोई भी वली है, कहीं की रहने वाला हो, किस जगह का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन हम उस पे ना लगे देखे इसकी विलायत का मकाम है बहुत बड़ा, उसके हम काम करते हैं, उसकी मुखालफत ना करें। एक बात कर लो, सुनो, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी किसको बोलते हैं? वो हदीस जिसके राज में लगी हुई, वो बात जिसके रिवाज करने वाले हमारा अल्लाह फरमाता है, मन आदाले वलियन मन आदाले वलियन फकद अदतहु लिल हद। मेरे नबी फरमाते लोगों, जो मेरे गुलाम हैं, जो मेरे बेईमान आदमी, जो मेरे उम्मत के वली हैं, जिस शख्स ने भी अल्लाह फरमाता है मेरे नबी तेरे गुलाम जो वली हैं, जिस शख्स ने भी उनसे दुश्मनी की फकद अदतहु लिल हद, अल्लाह फरमाता है मैं उसके लिए जंग लाया। हम डरे अल्लाह के प्यारे लोगों के साथ हम हर वली को मानते हैं, उसके इसलिए हम ज्ञानी बनाते हैं, 40वां करते हैं, सब वली को हुजूर को मानते हैं। हमारा ये ईमान है, हम अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है
साथ मांगते हैं और इस अकीदे को मजबूत रखें, इंशाअल्लाह हम फायदा ही फायदा मिलेगा। तो हमें तो चाहिए कि अल्लाह के वजू का एहतराम करें और उनके साथ अपना साथ है। हमारे साथ है शैतान। मैं तो अपनी बात करता हूँ, आप अल्लाह के बात करते हैं। हमारे साथ मेरे साथ शैतान होता है, इस तरह से नफ्स होता है जो कहता है वो करता है, नफ्स की मुखालफत करना, शैतान की मुखालफत करना बहुत बड़ा मुश्किल बात है। हम जो अपने दोस्त के गुलाम हैं, अपने नफ्स के गुलाम हैं, अपने इरादे के गुलाम हैं, कभी हम रसूलुल्लाह के गुलाम थे। नफ्स हमारे ने चाहा तो नारा भी मार दिया, नफ्स हमारे ने चाहा तो नमाज भी पढ़ ली, नफ्स हमारे ने चाहा तो खैरात भी कर ली, नफ्स हमारे ने चाहा तो बहुत बड़ी नेकियां कर ली। जब हमारे नफ्स ने नहीं चाहा तो कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ ये करूँ, नेकियां करो, खैरात करो, ये करूँ, नहीं चाहता। मतलब अपने चाहत के हम गुलाम बने, हम अपने चाहत के गुलाम बने। ये हमें नहीं कहा कि हमें हमारे रसूल का हुक्म इसलिए नहीं करना, इसलिए हमें अपने चीज को होना चाहिए। अल्लाह के वली, खुदा के प्यारे बंदे अपनी बात में नहीं चलते, पर वो अल्लाह के अल्लाह के रसूल को करते हैं, बात उसमें जाना हमें भी यही शब्द डाला। और हुजूर की ज़ात गिरामी वो भी यही हुआ है। कुल इन्ना सलाती व नस्ल उसकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे महबूब इन उम्मत को बता दो, इन लोगों को बता दो, पूरी कायनात को बता दो, इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे हबीब ऐलान कर दो कि मेरी नमाज, मेरी जिंदगी, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना खाना, किसी से दोस्ती रखना, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए है। और हमें जो अल्लाह के वली वही होता है जो अपनी सारी ख्वाहिशात रसूलुल्लाह की गुलामी को कुर्बान करता है। हमने सिर्फ ऐसा है, कोई ऐसा है ये कहे कि मेरे एक हुजूर की सुन्नत के ऊपर कुर्बानी नहीं, और इसी कुर्बानी में बराबर की सुन्नत को मैं नहीं छोड़ा, सुन्नत को मजबूत पकड़ा मैं। एक सुन्नत हमने नहीं पकड़ी, हुजूर की एक अदा हमने नहीं पकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया झूठ न बोलो, जो झूठ बोलता उसमें करार हूं, झूठ जो बोलता उसमें दूर हूं। वो मुनाफिक की निशानी है झूठ बोलना। खुदा की कसम हमने जाना क्या हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला? कोई झूठ नहीं बोला? अल्लाह हमारे पास मोबाइल है, एक शैतान की ऐसी बड़ी छोटी है और बोल के कितने झूठ बुलाती है। हमारी माँ बहनों सबके पास मोबाइल होती है, मेरे पास सबके पास जेब में लगी हुई। अगर किसी के साथ बात नहीं करनी है, उसको अपना हाथ नहीं बताना है, एक बजे उठाए हो गए क्या अलावा अलावा कर दिया, उसने बोला का पता है फला कर महीने में करनी ओ कर दू सारा बात जहाँ बैठा हुआ मुझे नहीं है कि मुझसे बात करनी। इस किस्म की चीज तो नहीं हो कितने साल की। हम मुसलमान इसलिए पीछे हो रहे हैं, हमने अपने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ दिया है। गीबत हमारा काम बन गया है, चुगली हमारा काम बन गया है। निबाजी भी, हाजी भी, गाजी भी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चुगली नहीं जाती। फलां ये कह रहा था और हमारी माँ ने माशाअल्लाह पेज की चुगली में पेज की, अतः झूठ बोलने में हमारी सब एक जैसे बन गए। मेरे औरतों के बात हो, लेकिन हम सारे एक जैसे औरतों से हम याद करें। चुगली में पीएचडी, हराम खोरी में पीएचडी, शराब में जो पीएचडी, हर चीज में हमने आगे पार कर दिया। फिर हम बोलते हैं मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, गुलामी के हमारे
रोज़ा रखी तस्वीर फिर मेरा अच्छे नमाज तरीके यकीन करना चाहिए, लेकिन कुछ इन बातों पर ख्याल रखना चाहिए, कुछ इधर तवज्जो देना चाहिए। हम आज से अगर ये तैयार करें अल्लाह तू माफ कर जाएगा, आइंदा मेरे ज़ुबान से झूठ नहीं बोलूंगा, आइंदा मैं किसी की शिकवा और ग़ीबत नहीं करूंगा, आइंदा के लिए मैं कभी किसी के साथ शरारत नहीं करूंगा, ये सीधा करूंगा। तो इंशाअल्लाह कुछ हम करें आगे अल्लाह मना करेगा। लेकिन हमने इस तरफ कहे नहीं, सोचा ही नहीं, हम खुद भी झूठ बोलते थे, बच्चों को सिखा देते, सबको बता रहे पता ये तो किताब है, ये कारोबार है, ये तो हमारा धंधा है, इससे बगैर गुजारा नहीं। अगर मैं सच बोलूंगा चल नहीं सकूंगा, अगर मैं सच बोलूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों कितना बड़ा फ्रॉड हम अपने साथ कर रहे हैं, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इसलिए बताया